Glamorous Lives of Islamabadi Housewives. Okay, sounds like a Netflix show. Salam Junaid Bhai, really big fan of askganjiswag series. I find these videos really cathartic and entertaining. Okay. A little background. I am a young female, studied from one of the big universities in Pakistan. Lived in Islamabad all my life, happily married and have kids. Okay, उन्होंने कुछ बोला कि exact information ना जाए तो I'm just winging it. After my degree, I had worked as a photography teacher and as a reputable advertising agency for 2 years. Had a love marriage and after that worked with my husband for his family business, made presentations and handled a little bit of social media until I had my first child. The problem starts when after marriage I got introduced to my husband's circle of friends and have to keep a relationship with their wives. Junaid bhai, I feel so out of place. These women are only in their early 30s and have no spark in them. All they talk about is their lavish lifestyle and travel stories. I swear अगर लोगों के Instagram निकालने जिंदगियों से women will buy less bags and travel even lesser. Anyway, everything in their lives just seem perfect. With only husband earning, they get to travel 3 to 4 times per year. Birthdays of their kid is a total pomp and show, and don't even get me started on their designer bags and clothes. Me and my husband, on the other hand, are very careful when it comes to raising our children and make sure to not ignore them from our momentarily fun. Being a mom of our children, I don't get an opportunity to go and meet new people much. All the friends from college and workplace have moved on to their own lives and mostly are out of country. Junaid bhai, this is the time I need a good circle where I can go and relax a little bit. But when I meet these glamorous housewives and their spending stories, I come back home even more exhausted, and I would go as far as to say I feel a bit inferior. They don't appreciate all the skills and sense of humor that I have. They don't know how to break the facade and come out of their rich life to connect with others. My husband also comes from generational wealth, but I never show that off, and I still have my own dreams and aspirations to achieve something in my life of my own. Can you please guide me how to find good people and how to deal with such women? Although my kid is crying in the background, I'm still trying my best to be fluent, make paragraphs and put full stops and commas. I know you judge a person by their email writing skills. Hope to hear from you. Regards. I don't judge as in कि भाई तो मेरे लिए भी आसान हो. अब इससे पहले जो ईमेल थी, खिचड़ी बना के भेजी, ना सर ना पैर ना फॉर्मेटिंग, कोई चीज़ ना, एकदम वो नहीं, मैगी नूडल्स को अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो तो एक एलियन लैंग्वेज लगती है. क्या कनेक्शन बनाया है, तो वो नज़र आ रहा होता है मुझे. सो लाइक यू नो आई एडमायर क्लिनलीनेस, कि मुझे पढ़ने में तकलीफ़ ना हो. ऑलराइट, सो आपने ईमेल सुनी. ये इस्लामाबाद में है खातून, शी इज़ अ मदर, और इनके हस्बैंड के काम की नौयत की वजह से जो कपल फ्रेंड्स हैं, तो दैट्स हर एंटायर सर्कल. और वहाँ पे आई एम नॉट सरप्राइज, आई हैव हर्ड दीज कॉन्वर्जेशंस, विच इज़ वाई आई हेट गोइंग टू ब्रंचेस पाकिस्तान में. पीपल आर एक्सट्रीमली लाउड, और क्योंकि वो लाउड इसलिए नहीं होते कि सामने वाले को आवाज़ नहीं आ रही, वो लाउड इसलिए होते हैं कि तीसरी टेबल वाले को भी आवाज़ है कि जो मैं कहानियाँ सुना रही हूँ या सुना रहा हूँ. आई वॉज विद माई वाइफ, वी वेंट टू एवरग्रीन यहाँ कराची में. वी बेयरली गो फॉर ब्रेकफास्ट यहाँ पे. तो हम उस दिन गए, हमने बोला चलो यार, विल हैव अ गुड टाइम. मैं आई किड यू नॉट, देयर वाज अ गाय क्लियरली ऑन अ डेट. जितनी दूर ये कैमरा है ना, कम से कम इससे भी थोड़ा सा आगे, और मुझे एक एक लव सुनाई दे रहा था उसका. एक तो वो ही वॉज फेकिंग हिज पिच, थोड़ा सा भारी करके बात कर रहा था. लाइक मैं यहाँ बैठ के उसकी सारी बातें सुन रहा था. एंड लाइक माई वाइफ एंड आई, वी वर नॉट टॉकिंग. लाइक चलो उसकी बातें सुनते हैं, क्लियरली वी कांट टॉक. इसी तरह आप कहीं भी जाएं, पीपल आर एक्सट्रीमली लाउड, एक्सट्रीमली लाउड. यू डोंट नीड टू बी लाउड. आई अंडरस्टैंड इफ़ इट्स अ लार्ज टेबल ऑफ फ्रेंड्स, तो समझ आता है कि चलो वहाँ तक आवाज़ नहीं आ रही है. एंड आफ्टर अ बिट पीपल टेंड टू गेट थोड़ा सा हाई पिच. मगर अगर आप सामने बैठे हो और लाइक देयर इज़ नो वन अराउंड, और मतलब आप 2 लोग हो या 4 लोग हो, यू डोंट नीड टू बी लाउड. आई रिमेंबर द ओनली टाइम आई वेंट टू कैफे फ्लो, इट वाज सच अ लेट डाउन. द फूड वाज ग्रेट. फ्लो इज़ लाइक कराची का वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू बी. सारे सेलिब्रिटीज़ आपको टॉप नॉच A-lister मॉडल्स आपको वहीं दिखेंगी. एंड इट्स अ BYOB,
यहाँ पे अक्सर रेस्टोरेंट्स हैं वे यू कैन ब्रिंग योर ओन बूज एंड व्हाटएवर। तो वहाँ पे आई हैड टू टेल दिस गाय, वो अमेरिका से आए थे और वो चाह रहे थे कि आधा रेस्टोरेंट सुने कि मैं अमेरिका से आया हूँ, ठीक है ना, अपना एक्सेंट भी। आई हैड टू टेल हिम इवन दो पाकिस्तान, इन अ प्लेस लाइक पाकिस्तान, स्पेशली इन अ प्लेस लाइक कराची, जहाँ पे लोगों की ईगो वैसी इतनी छोटी है कि अगर आप किसी को टोक दो तो बाहर उसके 4 गार्ड वैसे ही खड़े होते हैं और फिर वकार जगह जैसी वीडियो आ जाती है आपकी, ठीक है। तो इट्स वेरी रिस्की टू पॉइंट आउट समथिंग, बेहतर यही है आप चुप ही रहो यहाँ पे, बिकॉज यहाँ माइट इज़ राइट। आपने बदमाशी अगर नहीं करनी, आप तभी करो जब आपके भी 4 गार्ड बाहर खड़े हो, आप तभी किसी को टोको, वरना जो है ना लोग ईगो का मसला बनाए थे। बट स्टिल लाइक द मदरफकर वाज सो लाउड। हमारी एनिवर्सरी डिनर था उस वक्त, इफ़ आई एम करेक्टली रिमेंबरिंग। तो मैंने उसको पलट के बोला गया, सर यूर बीइंग एक्सट्रीमली लाउड, आई कांट हेयर माई ओन वाइफ। वो मेरे सामने बैठी, मुझे उसकी आवाज़ नहीं आ रही, मुझे आपकी आवाज़ पीछे से आ रही है। So yes, breakfast brunches are horrible. It's full of ladies लोग जो बच्चे छोड़ के आई हैं and now they have nothing to do till 1 o'clock. काम पे तो नहीं जाना, वो तो शोर गया हुआ है। एंड वो सब के ना राइटफुली डिज़ाइनर बैग्स टेबल पे प्लेस्ड हैं एंड दे मेक श्योर जब भी कोई ग्रुप फी हो रही होती है तो वो बैग यूँ टिल्ट हो जाता है ताकि शनेल भी दिखे और गुची भी दिखे और कर्ट गाइगर भी। कर्ट तो शायद उनके लेवल से थोड़ा सा नीचे हो, बट यू गेट व्हाट आई एम सेइंग राइट। इफ सेल रॉन्ग दिखे, जिसको YSL भी कहते हैं। सो या आई नो द टाइप एंड आई सी दैट टाइप ऑल द टाइम एंड नॉट जस्ट इन women, इन men एज वेल। so nothing substantial to offer, कोई कॉन्वर्जेसन ही नहीं होती। इट्स जस्ट हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वहाँ ये स्पेंड किया, ये किया, ये किया। इसीलिए कहते हैं कि जब आप कोई किताब नहीं पढ़ते ना तो आपके पास दिखाने को और कुछ रहता नहीं है, फिर आपके पास यही सुपरफिशियल बातें रह जाती हैं कि हम यहाँ पे गए और फलाने रेस्टोरेंट में खाना खाया और इज़मीर में हमने ये किया और अंतालिया में हम फेयरमॉन्ट पे ठहरे वगैरह वगैरह वगैरह। एनीवे, तो ये तो बड़ा मसला है यहाँ पे। अब आप ख़ुद भी नहीं काम कर रही, तो एक होता है ना कि आपको चलो प्रोफेशन से लाइक माइंडेड लोग मिल जाते हैं। आई वुड सजेस्ट पिक अप अ कॉज। इस्लामाबाद में तो वैसे भी काफ़ी NGOs हैं। पिक अप अ कॉज, वॉल्टियर फॉर देम। वहाँ पे आपको ज़रा लाइक माइंडेड लोग शायद मिल सकते हैं। अगर आप जैसे कि इफ़ यू बिलीव इन एजुकेशन, देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग, टीचिंग, कोई वॉल्टियर वर्क कर लें, कोई ईजी आवर्स वाला, शाम में जाके कहीं पढ़ा लें, कुछ भी कर लें। उससे कि आपको अपनी रूह को भी तस्कीन मिलेगी, आपको खुशी भी होगी, यूल फाइंड अ मीनिंग इन लाइफ, बट ऑल्सो यूल फाइंड लाइक माइंडेड पीपल। दैट्स परहैप्स द ओनली वे टू डू थिंग्स। या फिर कोई स्पोर्ट्स अडॉप्ट कर ले इफ़ यू आर इनटू दैट, तो उसमें भी आपको लाइक माइंडेड लोग मिल सकते हैं। आई रिसेंटली गॉट अ DM फ्रॉम दिस वंडरफुल लेडी। वो लाहौर में होती हैं एंड देयर आर कपल फ्रॉम कराची, वेरी कॉर्पोरेट कपल। तो वो दे रिसेंटली मूव टू लाहौर एंड शी इन्वाइटेड मी टू अ गेम नाइट एंड दे हैव एन इंस्टाग्राम, उसका पूरा कि वो गेम नाइट्स करते हैं। सो बेसिकली उनका भी मानना यही था कि दिस अलाउज अस टू मीट द लाइक माइंडेड पीपल। ऑफ कोर्स दे थरली एंड केयरफुली गो थ्रू द प्रोफाइल्स, ऐसे नहीं कि हर कोई भी उठ के आ रहा है। सो दे इन्वाइटेड मी फॉर अ गेम नाइट के आगे। आई एम लाइक, मैं सीधा हूँ, मुझे कोई कार्ड गेम नहीं आता है, मुझे कोई बोर्ड गेम, आई हैव नेवर बिन इन टू ऑल दीज सैडली। मुझे चेस सीखना है यार, बाकी चेस मैंने ज़िंदगी में पता नहीं क्यों मिस किया। दैट आई रियली वांट टू लर्न। बट सो शी सेंट मी वीडियोज, इट लुक लाइक अ नाइस कोजी हाउस और उसमें लोग आए हुए हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स। सो दे केटर टू 10 साल से लेके 80 साल तक। नाउ इट्स नॉट ये किसी किस्म का वो नहीं है, कोई मॉनिटरी सीन नहीं है या कोई पेड गिग नहीं है। इट्स जस्ट they're just opening their house to like-minded people and sort of having fun in a fun way. तो अब ये मुझसे नहीं पूछेगा कि कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, हमने भी अपना मोनोपोली लेके जाना है, जिसको लोग यहाँ मोनोपोली बोलते हैं। तो आई मीन आई थिंक इट्स ओपन फॉर इनवाइट्स ओनली. So that's also one good, healthy way to meet like-minded people and open doors. But of course, in a place like Pakistan, things can go south. तो you have to be super careful. अभी मुझे एक email आई एक साहब की, उनके कोई प्रॉपर्टीज़ हैं Airbnb टाइप्स,
So he's like, yeah, next time you're in Lahore, please stay here. And I didn't want to say it to him, but I was like, yeah, I find it difficult to trust Airbnbs in Karachi, in Pakistan. I don't know भाई किसने क्या लगाया वो वहाँ पे, तो मैं नहीं जाता. Not like I'm gonna do anything, but yeah, I don't feel comfortable. तो ये भी है यार, बड़े मसले मसाइल रहते हैं. बट दैट्स ऑल्सो वन हेल्दी वे टू मीट पीपल लाइक माइंडेड. कोई स्पोर्ट्स आगे, कोई बोर्ड गेम है, फाइंड देयर कम्युनिटीज़. आई एम श्योर इस्लामाबाद के भी ग्रुप्स होंगे, कराची के बड़े अच्छे ग्रुप्स हैं ऑन फेसबुक, जहाँ पे they do a lot of interactive activities वगैरह वगैरह. But yeah, it gets very boring being around certain people, जिस तरह आपने point out किए हैं. And like, you know, there is like इसकी भी ना आजकल कमी नहीं है कि there are women, of course there are many women who want to create their own identity, who want to create their own legacy. जैसे आपने बोला your husband comes from generational wealth, आपके लिए बड़ा आसान है, आप भी कोई गुची प्राडा का बैग लेके, क्रॉस बॉडी लेके, या टोट वोट लेके, डियोर का आप बैठ जाए. बट लाइक यू आर आउट देयर ट्राइंग टू मेक योर ओन मार्क. सो देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वंडरफुल women out there who, despite having all the means in the world, want to create their own legacy. But then there is a huge आजकल बड़ा आसान हो गया है लोगों के लिए, because Instagram is there. They just need to be out there, and there are people, क्योंकि उन्होंने सोच लिया. यू गो टू दीज कैफ़ेज़ यार, आजकल अजीब क्राउड आने लग गया है. वो उनका बस यही होता है, कहीं से आईफोन आ जाए, कहीं से ये आ जाए. इट्स लाइक आई डोंट नो यार, बिकॉज इट्स डिफ़िकल्ट कि सुबह 7 बजे उठें, वैन में बैठें, ऑफिस जाएं, प्रेजेंटेशन बनाएं, क्लाइंट गालियां दे रहा है, बॉस तंग कर रहा है, और फिर जाके महीने के एंड में 1,00,000, 1,25,000, 1,50,000 जो सैलरी मिल रही है, उसमें से 37% गवर्नमेंट निकाल रही है. फिर आप GST पे अलग दे रहे हो, कर आके आपके पास पीछे 30-40 हज़ार ही बच रहा है. उससे बहुत ज़्यादा आसान है लुक गुड, हैव अ नाइस बट. देयर आर पीपल, न्यू मनी रियल स्टेट वाले बॉयज़, हैप्पी टू थ्रो इन एन आईफोन, हैप्पी टू गिव यू अ सिविक, हैप्पी टू कीप यू ऑन द साइड एंड just pay for your meals, pay for your travels, pay for your bags. ये पौध बड़ी आ गई है आजकल, बिकॉज आसान हो गया है ना, ढूंढना आसान हो गया. इंस्टाग्राम इज़ आउट देयर, सबका इंस्टाग्राम ओपन है, आप जाएँ DM CM मारें, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ अकाउंट्स. बंदा सोचता है यार कभी इसको ऑफिस में नहीं देगा, लेकिन इसके शशके पूरे, ट्रैवल्स भी पूरे हैं, इसके बैग्स भी पूरे हैं. आईफोन बिलाल मुनीर के पास बाद में आता है, इनके पास पहले आ जाता है. तो कहाँ से आ रहा है? खैर भाई, टू ईच देयर ओन, अब सबका अपना अपना है, जिसने जो करना है करे भाई. सो या एक बहुत बड़ी पौध ना ये वाली तैयार हो गई है हमारे मुल्क में, जिन्होंने बस देख लिया कि यार करना कुछ नहीं है, बस हमने जो है ना रिलैक्स करना है, करने वाला तो बैठा है दफ्तर में कहीं. सो वो एक लेज़ीपन हम ले आए हैं अपने मुल्क में. सो या माइंडसेट की बात है. और मुझे भी जो है ना इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं हैं, जहाँ पे कोई मीनिंगफुल बात ना हो, कोई मज़े की बात ना हो, या आप कुछ सीख के ना उठ रहे हो वहाँ से. एक महफिल में आपने कुछ सीखा ही नहीं. इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. सो या खैर, आई होप यू फाइंड गुड फ्रेंड्स एंड आई विश यू ऑल द लक. टेक केयर. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है. हमारे YouTube चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. शुक्रिया.